Hello guys, good morning. I'm going to today create user account creation, single and bulk creation command and best practices under my technical channel. So you guys please stay healthy and see my video for as an informative video for user account creation each and every part of user account creation. So I'm going to user account creation on Windows Server 2025 latest Active Directory part. So guys, please see and improve your knowledge. Introduction of the Active Directory 2025 follows zero trust and hybrid identity, secure standardize user creation in critical the PPT cover सिंगल एंड बल्क यूजर क्रिएशन। सो मैं इसमें सिंगल और बल्क यूजर क्रिएशन के बारे में आपको बताऊंगा कैसे बल्क यूजर क्रिएट करेंगे आप। सो यूजर अकाउंट टाइप सम ऑर्गेनाइजेशंस apply the user account type of standard user account for daily operation, admin user account for privilege access, and service account to manage the application and services, temporary for vendor account. Some vendors are your organization, so we have create as a temporary user account naming conventions of the user account just like UPN first name dot last name at the rate company name, SAM account first name dot last name, admin hyphen first name first letter dot then last name, service account started from SVC hyphen application name to understand this service account used for which application and which purpose. So better understanding we have used naming convention. So some organization strictly apply these naming conventions. OU structure. If you create user on the user account with department, some users on sales, then users account create on sales department. Some users are related to IT, then user account create to IT or OU organization unit. Some users account from belong from admin, so user account create on admin OU. Some users account belong from service account, so this user create on service account OU. Some users are disabled, so after that move the friends on disable OU. Never use the default user container because default user container not apply group policy. So we have apply multiple group policy according to OU and available users are applied the mandatory group policy. So if you are using default OU, then not apply the security policy which your organization standard, just like vulnerability and this type of setting. Mandatory user attribute: first name, last name, display name, user principal name, department and title name, manager and employee ID. These are mandatory attribute to fill the when create user account. Password and security policies. Minimum 40 to 16 character of password, fine grained password policy, account lockout after failed attempt, change password at first login. Suppose that we have create any user account on the organization, then minimum password character is say 40 to 16 and fine grained password policy is just like user required to more than 25 character password. That time we have create a fine grained password policy to apply the specific group, and a specific group users are apply the fine grained password policy. Guys, that time we have applied the fine grained password policy
And account lock, suppose that I have attempt 3 times wrong password, then my user account got it to lock, and after 1 hour it's auto unlock. These are policy applied via group policy. We'll discuss later this topic to group policy. Now I'm going to domain controller and create one users, and some users already created. तो गाइस मैं यूज़र अकाउंट क्रिएट करने जा रहा हूँ। कैसे आप यूज़र अकाउंट क्रिएट करेंगे वर्ड डिटेल में बता रहा हूँ। आई नो यू आर अवेयर अबाउट यूज़र अकाउंट बट सम गाइस आर न्यू, सो कुछ बंदे यूज ये कुछ नए होते हैं, उनके लिए मैं डिफिनेशन दे रहा हूँ जस्ट लाइक आई नो। फर्स्ट नेम, यहाँ पे हमें नेम फिल करना है, जैसे मैं इसमें सुनील फिल कर रहा हूँ। फर्स्ट नेम इज सुनील आई थिंक, एंड सेकेंड नेम इज KUMAR कुमार। फर्स्ट नेम, यहाँ मेरा फुल नेम इज ऑटोमेटिक ले लिया। लॉगिन नेम में मैं SUNIL सुनील फर्स्ट नेम लिखा, डॉट लास्ट नेम कुमार। मेरा यहाँ लॉगिन नेम में ऑटोमेटिक आ गया और ये मेरा यूपीएन रहा, सो क्लिक नेक्स्ट, देन पुट द क्रेडेंशियल। सो हमें क्रेडेंशियल दोनों में सेम ही रखना है, पासवर्ड और कंफर्म। और यहाँ हम यूज़र अकाउंट चेंज पासवर्ड एंड नेक्स्ट लॉगिन, अगर ये हम सेलेक्ट कर देते हैं तो पासवर्ड जैसे यूज़र लॉगिन होगा उसे चेंज करने का प्रॉम्प्ट आएगा। अगर हम सेलेक्ट करते हैं यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड, तो यूज़र पासवर्ड चेंज नहीं कर पाएगा, वो उसे जब भी चेंज करना होगा एडमिनिस्ट्रेटर से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। पासवर्ड नेवर एक्सपायर, जब हम पासवर्ड नेवर एक्सपायर रखते हैं तो यूज़र का अकाउंट एक्सपायर नहीं होगा, पासवर्ड एक्सपायर नहीं होगा। अकाउंट इज डिसेबल, अगर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ तो यदि अकाउंट तो क्रिएट होगा बट वो डिसेबल स्टेज में होगा। जस्ट लाइक आप देख लो, ये दो यूजर अकाउंट क्रिएट है उसके और ये डिसेबल में फ़र्क क्या है। सपोज मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, जैसे यूजर अकाउंट क्रिएट करने के बाद इसे ही कर लेता हूँ, कोई नहीं, जो मैंने क्रिएट किया है। ये जनरल में आ गया इंफॉर्मेशन, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिस्प्ले नेम, दिस आर एट्रीब्यूट, यूजर एट्रीब्यूट। यूजर इज वन ऑब्जेक्ट बट इसके एट्रीब्यूट क्या क्या है ये सारे हैं। डिस्क्रिप्शन, ऑफिस, टेलीफोन, ईमेल, वेब पेज, अंडर अकाउंट, एड्रेस, स्ट्रीट, बॉक्स, सिटी, अकाउंट, फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम, यूपीएन नेम। ये आ गया आपका ऑप्शन। यहाँ से मैं अगर डिसेबल हटा देता हूँ तो डिसेबल हट जाएगा, आइकन चेंज हो गए। डिसेबल के आइकन और नॉर्मल यूजर का आइकन आपने देख लिया। और ये है लॉग ऑन आवर। If I need this user account not log in on Sunday, then deny login. And if I needed this user account not log in on Saturday, then also deny. So this user account, ये यूजर हमारा सैटरडे और संडे को लॉग इन नहीं कर पाएगा। अगर किसी और दिन या किसी और टाइम ड्यूरेशन में, जैसे यहाँ से 2 बजे से 4 बजे के बीच में, मैं 4 AM तक हमें लॉगिन नहीं देना है इसको, तो यहाँ से भी हम हटा सकते हैं। अगर हमें इसको 6 बजे से क्या 4 बजे के बाद से लेकर के अगर इधर से हटाना है मुझे 16, यानी कि 4 बजे शाम के बाद वो लॉगिन नहीं कर पाए, तो हमें यहाँ डिनाई कर दूंगा। तो ये यूज़र इसी ड्यूरेशन में लॉगिन कर पाएगा। अगर कुछ दिन के बाद वो नहीं नहीं इसको सारे ड्यूरेशन में लॉगिन कराना है, तो फिर हम इसको यहाँ से चेंज कर देंगे, तो इस ड्यूरेशन में कभी भी वो लॉगिन कर पाएगा। और एक ऑप्शन है लॉग ऑन टू, अभी बाय डिफॉल्ट है इसमें
ऑल कंप्यूटर, अगर हम यहाँ सेलेक्ट कर देंगे इसको और यहाँ पे कोई कंप्यूटर स्पेसिफिक हम डाल दिया, तो वह उस स्पेसिफिक कंप्यूटर पे ही लॉगिन कर पाएगा, अदर कंप्यूटर पे नहीं लॉगिन कर पाएगा। यू गॉट इट माय पॉइंट। एंड अनदर ऑप्शन इज प्रोफाइल, यहाँ हम डिफॉल्ट कोई होम फोल्डर है तो वहाँ से हम कनेक्ट करके दे सकते हैं। ये टेलीफोन जनरल इंफॉर्मेशन है, कोई मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, दिस डिटेल वी कैन अपडेट इट। जस्ट लाइक ये जॉब टाइटल, क्या इसका डिजिग्नेशन क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, कंपनी क्या है, ये सब चीज़ें हम फिल कर सकते हैं। बाकी ये रहा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट ऑप्शन। यहाँ लॉट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स आर शोइंग, जस्ट लाइक CN, बैड पासवर्ड, यूजर ने कितने बार मतलब बैड पासवर्ड यूज किया है, वर्ड डिटेल, कोड, कंट्री कोड, डिस्प्ले नेम क्या है वो आ जाएगा, डिस्टिंग्विश नेम क्या है, DS कोड, गिवन नेम, इंस्टांस, लास्ट लॉग ऑफ कब किया यूजर, अभी तो लॉग मैंने यूजर क्रिएट किया है तो ये सब डिटेल नहीं है, जैसे लॉगिन होगा लॉग ऑफ होगा तो बस डिटेल यहाँ पे फिल होते जाएंगे। कुछ डिटेल ऑलरेडी फिल है, कुछ डिटेल लॉगिन के बाद फिल होंगे, जैसे ये है UPN नेम क्या है इसका, यूजर अकाउंट कंट्रोल क्या है, नॉर्मल अकाउंट है, इसका वैल्यू 512 है। डिसेबल करूंगा तो इसका कुछ आईडी अलग हो जाएगा, अगर मैं इसको डिसेबल करता हूँ। इनेबल का 512 था। यूजर अकाउंट या दिस वन इस यहाँ पे आप शो कर दिया डिसेबल यूजर अकाउंट कंट्रोल, और इसका वैल्यू हो गया 514, यानी कि ये मार्क कर दिया एट्रीब्यूट में, ये डिसेबल हो चुका। जैसे इनेबल करेंगे ये 512 हो जाएगा फिर से। दिस आर एट्रीब्यूट, ये ऑब्जेक्ट है, कब क्रिएट हुआ, कब मॉडिफाई हुआ, ये डिटेल हमने क्रिएट कब किया है, आज के डेट में 2026 इतने बजे, और ये मॉडिफाई भी कब हुआ है, ये सारा इंफॉर्मेशन दे देगा। सो these आर द एट्रीब्यूट द यूजर अकाउंट। सो नेक्स्ट स्लाइड, ग्रुप मेंबरशिप। User security group only follow the AZLP model, no direct permission, user access based and role based। जैसा एक्सेस होगा उसके हिसाब से हम उसको रोल असाइन करेंगे। सिक्योरिटी ग्रुप जो भी हमने ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। सिंगल यूजर क्रिएशन का ये कमांड है, इसके थ्रू हम सिंगल यूजर अकाउंट क्रिएशन कर लेंगे। बट हमें यहाँ यहाँ मैंडेटरी चेंजेस कुछ करने हैं, जैसे पाथ हमारा क्या रहेगा, वह पाथ हमें देना है। डोमेन नेम चेंज करना है, ये मेरा पेरेंट डोमेन है इसलिए मैंने ये रख रखा है यहाँ। इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अगर हमने एडिशनल डोमेन है तो वहाँ उसके हिसाब से चेंजिंग करना, नहीं तो हमें पेरेंट में ही क्रिएट करना होगा। बल्क यूजर अकाउंट क्रिएशन के लिए हम एक CSV बनाएंगे, उसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, UPN, डिपार्टमेंट, टाइटल, एम्प्लॉय आईडी, देयर आर डिटेल फिल करने के बाद हम उसको एक पाथ पे रख देंगे, कहीं भी जिस टाइप ऑफ डिटेल फिल करके एक्सेल फाइल, सॉरी CSV फाइल क्रिएट करना है, और उसके अकॉर्डिंग हमें यूज़र अकाउंट क्रिएट होगा। उसके बाद हम पावर सेल ओपन करके ये कमांड रन करेंगे तो हमारा पावर बल्क यूजर अकाउंट क्रिएशन हो स्टार्ट हो जाएगा। सो अगर जैसे हमें 500, 2000, 1000 इस तरह से करना है तो हम बल्क के थ्रू जा सकते हैं, अदरवाइज अगर एक दो करने हैं तो हम नॉर्मल जा सकते हैं। पोस्ट creation checklist, add user account to security group, assign Microsoft 365 license, enforce MFA, test login access, update documentations। These are prerequisite है, हम चेक कर सकते हैं before after create। Audit and compliance, इवेंट आईडी 4720 है यूजर अकाउंट क्रिएशन का। जैसे हम यूजर अकाउंट क्रिएट करेंगे
उसके बाद हम उसी डोमेन कंट्रोलर पर चेक करेंगे कि भाई हमारा ये अकाउंट किस लिए है, क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, वो चीज़ हम चेक कर सकते हैं। या हमें किसी ने अकाउंट क्रिएट किया, किस बंदे ने किया, अगर हमें देखना है तो इस इवेंट आईडी से जाकर हम इवेंट व्यूअर के सिक्योरिटी में जाकर के हम चेक कर सकते हैं। मॉनिटर बाय से में क्वार्टरली एक्सेस रिव्यू हम चेक करते हैं कि हर 3 मंथ पे क्या, हाँ, जो जो एक्सेस मिला है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। डिसेबल, ये अकाउंट को डिसेबल करना, इनएक्टिव लॉगिन है, लॉगिन नहीं कर पा रहा तो 90 डेज से। देन वी हैव टेक द अप्रूवल फ्रॉम आईटी हेड, देन वी विल प्रोसेस फॉर डिसेबल एंड मूव टू द डिसेबल ओयू। ऑफ बोर्डिंग प्रोसेस, जो कि मैंने आगे आपको डिफाइन कर रखा है। डिसेबल अकाउंट इमीडिएटली, कुछ यूजर अगर ऑर्गेनाइजेशन लीव कर चुके हैं तो उनके आईडी हम डिसेबल कर देंगे। रेस्ट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड, रिमूव ग्रुप मेंबरशिप, archive mailbox, move user to disable OU। अगर कोई यूजर अकाउंट को ऑफ बोर्ड करना तो दीज आर प्रोसेस है जो कि हम फॉलो करेंगे। कंक्लूजन इस वीडियो का यही है कि हम स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं वो हमने देखा। एडमिन अकाउंट, बल्क बल्क में हम कैसे यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं वो मैंने दिखा, आपको एक्सप्लेन कर दिया। इन्फोर्स सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस, कैसे हमसे पॉलिसी वगैरह अप्लाई करेंगे, वो ओयू बेस पे लगा होता है। जैसे अगर सेल्स का यूज़र है तो हम सेल्स ओयू में क्रिएट करेंगे, सेल्स से रिलेटेड जो भी पॉलिसी है वह लग जाएगा उस यूज़र पे। एचआर का अगर यूजर है तो हम एचआर ओयू में ही क्रिएट करें ताकि एचआर के जो भी पॉलिसी है एचआर रिलेटेड वह लग जाएगा उस यूजर अकाउंट पे अप्लाई हो जाएगा। सो वी हैव क्रिएट यूजर अकाउंट अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट डिजिग्नेशन। So this is the conclusions of overall user account creation. So आप लोग, अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो आप लोग सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपना फीडबैक डालें कमेंट में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।